Hello guys, welcome to Exam Lexicon YouTube channel. So I've been getting one specific query from many students from our Facebook and Telegram group, and that query is what can be our strategy and proper timetable to prepare for CAT 2020 starting from zero level and starting from June and July onwards. मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्क्रैच से स्टार्ट करे देन व्हाट शुड बी हिज रोड मैप, हिज टाइम टेबल, डेली टारगेट्स टू अचीव एंड द स्टडी मटेरियल टू बी यूज्ड. I made 4 separate videos to cover the detailed strategy for VARC, DILR, Quants and an overall CAT strategy. And in this video, we'll be talking all about DILR, that is data interpretation and logical reasoning. So let me start with a brief introduction about myself. My name is Sagar and I pursued BTech from VIT University, Tamil Nadu. These are my CAT and other management entrance test credentials, and I was also a student of IIM Jammu. So first of all, coming to the biggest doubt in the minds of many students, that is it even possible to prepare for CAT starting from scratch from June or July onwards? So my answer to that is yes, definitely. Moreover, you can even score more than 99 percentile if you work smartly, set daily targets for yourself and achieve those targets, and also track your progress on a daily basis. And to strengthen your belief in yourself that yes, it can be done even if I start from June or July onwards, I put this snapshot from my own notebook in the strategy videos of all 3 sections. This is the notebook where I used to write summary of daily editorials. So as you can see, this is the first page of my notebook and I wrote my first ever editorial on 24th June. Alright, and still ended up getting this and this and these. So there must have been something which I did correctly, जिसकी वजह से first attempt में ही I got high percentiles in several exams, also calls from many good colleges and even a few converts as well. So what was my timetable? How many mocks did I take? How did I track my overall progress? And which books or coaching material I used? ये जितने भी topics हैं, ये सब हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं. But before we start with anything else, let us first discuss the syllabus of DILR section. So DILR section in CAT has total 32 questions, out of which 16 are from LR and 16 are from DI. This is the syllabus of LR, logical reasoning, and this is the syllabus of DI. Alright. Apart from these topics, we have unconventional और miscellaneous sets as well, जिसमें ये किसी भी दो टॉपिक को मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं या फिर कोई एक नया टॉपिक भी आपके सामने आ सकता है. फॉर एग्जांपल 2017 में एक चेस का पजल आया था, या फिर कॉइन पिकिंग का आता है, या नंबर ऑफ विजिटर्स का आता है. तो ये सब चीजें अनकन्वेंशनल सेट्स में आ जाती है और इसके लिए बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस इज कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स. अगर आप कैट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाते हैं then you get a much better idea of the unconventional sets that might be asked in CAT. And last topic is OMAT based DILR. OMAT is other management entrance test based DILR. तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं which are specific to other management entrance test जो CAT में नहीं आते हैं, लेकिन जो बाकी टेस्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल NMAT, SNAP, इन सब में वो पूछे जाते हैं. तो वो भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. So now you know the pattern of the exam and also the syllabus of the DILR section. तो अब आपका पहला स्टेप क्या होगा? What will be your first step? How can you start your preparation in the best way possible? So ये मैंने VARC और क्वांट्स में भी आपको बताया है that you will have to take a mock. अगर आप चाहे DILR का सेक्शनल टेस्ट ले लो, चाहे आप फुल लेंथ टेस्ट ले लो, लेकिन आपको लेना है. इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे? You will get to know the interface of the exam. एग्जाम में कैसे चीजें वर्क करती है, टीटा टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन कैसे काम करता है, और टाइमर कैसे चलता है, कैलकुलेटर कैसे डिस्प्ले होता है. वो सब चीजें आपको एक बार आप टेस्ट ले लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन कैट एंड वेयर यू स्टैंड राइट नाउ. अभी आपकी जो करंट पोजीशन है वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मॉक सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें जानने के लिए ही लेना है. आपको इसमें चाहे मार्क्स नेगेटिव में आए, चाहे जीरो आए, चाहे पॉजिटिव आए, मार्क्स के बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. ऑलराइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप टेस्ट देंगे तो आपको इससे आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी का भी पता चलेगा. बिकॉज 1 घंटा बैठ के या फिर अगर आप फुल लेंथ लेते हैं तो आपको 3 घंटा बैठ के एक एग्जाम को टोटल फोकस के साथ देना, वो भी एक टिपिकल टास्क हो सकता है काफी लोगों के लिए. तो वो भी आपको पता चलेगा, स्पेशली इन दिस सेक्शन DILR सेक्शन में तो बहुत ही ज्यादा फोकस की जरूरत होती है. तो इससे आपको आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी का भी पता चलेगा. सेकेंडली वी नीड टू मेक अ रोड मैप. लेकिन रोड मैप मैंने आपके लिए बना दिया है ऑलरेडी 90 डेज का, एंड इसमें फर्स्ट 90 डेज में विल बी कवरिंग दी बेसिक फंडामेंटल्स, और जो बाकी हमारे पास 2-3 महीने बचेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप ये 90 डेज का प्लान सितंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास अक्टूबर और नवंबर बचेगा. उसमें आपको क्या करना है? आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना है, उनको एनालाइज करना है और रिविजन करना है. दैट्स इट.
All right, now coming on to the timetable. So there are three things which you need to do on a daily basis. ये तीन चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है. अगर आप ये तीन चीजें ऑन अ रेगुलर बेसिस कर लेते हैं, then no one can stop you from performing exceptionally well in the DILR section as well. So first of all, make a tentative schedule and track it dynamically. देखो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे टॉपिक को कवर करने वाले हो, और आपको उसको डायनेमिकली ट्रैक भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने शेड्यूल बनाया या और उसको साइड में रख दिया बना के. आपको डायनेमिकली उसको चेक करना पड़ेगा कि आप उसके हिसाब से चल भी रहे हो कि नहीं चल रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका काम मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यू गाइस. उसमें हम क्या करेंगे, जो 79 डेज विल बी, टोटल 90 डेज का है, 90 डेज में से 79 डेज में हम विल बी लर्निंग बेसिक फंडामेंटल्स and 11 days are reserved for taking sectional test. So let us see what's the tentative timetable which I have made for you. So here's the tentative schedule which I have planned for you guys. You can take a screenshot of it if you wish to. Otherwise, I will also be sharing its download link in the description box of this video. So you can download it from there as well. See, I have strictly kept 3 points in mind while making this timetable. First of all, I have covered all the topics of the syllabus. जितने भी टॉपिक्स हैं LRDI में वो सब मैंने इसमें कवर कर लिया. फिर भी इन केस अगर कोई टॉपिक बाय चांस मेरे से मिस हो गया हो, देन यू कैन ऐड दिस इन द टाइम टेबल. सेकेंडली, ईच टॉपिक इज गिवन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट. हर टॉपिक को जितना टाइम देना चाहिए एज पर इट्स डिफिकल्टी लेवल एंड इट्स डेप्थ, उतना टाइम मैंने हर टॉपिक को दिया है. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई हैव केप्ट दिस टाइम टेबल रियली प्रैक्टिकल एंड फिजिबल टू यूज. मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा है जो आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर सकते. I have kept it really simple yet very effective. And one more thing, it's just a tentative timetable, so you can always edit it as per your choice. कि for example अगर आपको लगता है कि मेरा गेम्स एंड टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स माई वीक पार्ट, एंड अरेंजमेंट जो है लीनियर और सर्कुलर ये मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका टाइम टेबल में चेंज करके इनको आप 2-2 दिन दे सकते हो, और इसको आप +2 करके इसको आप 5 डेज दे सकते हो. ऑलराइट, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, बट एक बार आप चेंज करके और इसको फाइनलाइज कर लेना. ऐसे नहीं कि आप बार बार चेंज ही करते रहो इसको, एक बार आप चेंज करा के इसको फाइनलाइज कर लेना, सो दैट यू कैन इजीली ट्रैक इट लेटर ऑन. एंड इन केस ऑफ फ्रेशर्स, उनको नहीं पता होगा कि उनका कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस टाइम टेबल. ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने बहुत सोच समझ के ये टाइम टेबल बनाया है, तो अगर आप इसको भी फॉलो कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा. Now secondly, you need to practice at least 4 sets daily. ये आपको करने ही करने हैं. अब आप 4 सेट्स कैसे कर सकते हो, या तो आप हर दिन 2 LR और 2 DI के सेट कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन 4 LR के सेट कर लो, अगले दिन 4 DI के सेट्स कर लो. दैट इज आप डे 1 पे LR कर लो, डे 2 पे DI, फिर LR फिर DI. यू कैन वेरी इट ऑन ऑल्टरनेट डेज. फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हो, जैसे आप एक लीनियर अरेंजमेंट के 2 सेट कर लिए आपने आज, और एक बार चार्ट के 2 सेट कर लिए. अगर आप दोनों को साथ साथ चलाना चाहते हो कि 2 सेट LR के करने हैं, 2 DI के करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 इसके कर लिए, 2 इसके कर लिए. हमने इसको कितने दिन दिए, 3 दिन दिए, इसको भी हमने 3 दिन दिए, तो हम टोटल मिला के इन दोनों को 6 डेज हमको देने हैं. अगर आप इन दोनों को कंटिन्यूअस चला रहे हो साथ साथ, तो आप इसके अगले दिन भी 2 कर सकते हो, फिर इसके भी 2 कर सकते हो. ऐसे करते करते 6th डे तक आप 2 करते रहोगे, तो आपके 12 सेट्स कवर हो जाएंगे. हर एक टॉपिक के आपके 12 सेट्स कवर हो जाएंगे. और अगर आप एक टॉपिक पे 12 सेट कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग 12 सेट्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ LR और DI, देन इट इज रियली गुड इनफ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट, और कि यू कैन डू 4 sets of this on day 1, then 4 sets of this on day 2, then 4 sets of this on day 3, then 4 of bar charts, and then 4 of this, and then 4 of this. तो इस तरीके से भी आपके 12 सेट हो जाएंगे. मतलब हर टॉपिक पे आपको 12 सेट्स सॉल्व करने हैं एटलीस्ट. ऑलराइट, और अगर आप एटलीस्ट 4 सेट्स भी नहीं करते हो डेली, then there are high chances that you might end up like this on the D day. Alright, so daily 4 sets तो एटलीस्ट कर ही लेना. And last but not the least, you need to track your progress regularly using the Excel sheet that I have made for you. उसमें मैंने आपके टारगेट्स वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं. उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं which will be giving you your daily progress, वो सब मैंने उसमें डाल दिए हैं.
सो हैव अ लुक एट दिस क्लिप एंड इसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हाउ यू कैन यूज दिस एक्सेल इफेक्टिवली. So guys, here's the Excel sheet that I have made for you and which will help you track your daily progress. Let me just quickly take you through this and tell you how you can use this effectively. But before I start, let me first tell you that it has taken me almost 3 to 4 days to compile all the data and make this Excel sheet in the best way possible so as to make things really easy for you guys to follow. So use it and share it with your friends as well who are preparing for CAT 2020. And one more thing, I have made this sheet in such a way that it will be helpful for everyone, whether you are a working professional or a college student or a dropper or even a repeater can use this to organize his or her CAT preparation. So without any further delay, let me explain you how you can use this to track your daily progress. So guys, sheet बहुत सिंपल सी है. फर्स्ट रॉम में आपको मैंने डे नंबर डाल दिया डे 1 टू अप टू डे 90 बिकॉज हमने ये 3 मंथ्स का प्लान बनाया है तो उस हिसाब से मैंने डेज डाल दिए. एंड फर्स्ट कॉलम में मैंने वो सब डेटा डाल दिया जो आपको फिल करना है. और ये जो लास्ट 3 कॉलम्स है परसेंटेज, एग्जाम एफिशिएंसी एंड डेविएशन, ये आपको फिल नहीं करने, ये ऑटोमेटिकली फिल होते रहेंगे. आपको सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स डालने हैं, टाइम डालना है और आपके नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स यहाँ पे डालने हैं. तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने आज टॉपिक कवर किया LRDI का लीनियर अरेंजमेंट, तो लीनियर अरेंजमेंट आप डाल दीजिए. यू कैन यूज एनी एब्रीविएशन, जो भी आपको जिस हिसाब से भी डालना हो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास. अब मैंने टारगेट आपको 16 क्वेश्चंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको एटलीस्ट 4 सेट डेली सॉल्व करने हैं. सो आई हैव अज्यूम्ड कि हर सेट में 4 क्वेश्चन होंगे. आई हैव अज्यूम्ड 4 क्वेश्चंस पर सेट. उस हिसाब से आपको 16 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस सॉल्व करना है. लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 4 सेट किए लेकिन चारों सेट्स में 5-5 क्वेश्चन थे तो कोई इशू नहीं है. अगर आपने 4 सेट किए हैं विद 5 क्वेश्चंस ईच तो आप यहाँ पे 20 डाल दीजिए कि आपका अटेम्प्ट 20 था. एंड आपने टाइम टेकन, आपका फर्स्ट डे था, आपको बहुत टाइम लग गया. फॉर एग्जांपल सपोज 20 क्वेश्चंस करने में, 4 सेट सॉल्व करने में आपको ऑलमोस्ट लग गए 80 मिनट्स. 80 मिनट्स में आपने 4 सेट सॉल्व कर लिए. अब आपको करेक्ट आपको ये देखना है कि आपने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए. तो फॉर एग्जांपल आपके 14 करेक्ट हुए हैं. सो परसेंटेज आपको अपने आप कैलकुलेट करके दिखा देगा आपकी एक्यूरेसी क्या रही है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सॉल्व 14 करेक्टली आउट ऑफ 20, सो आपका परसेंटेज आ गया यहाँ पे 70%. अब ये जो एग्जाम एफिशिएंसी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू टेस्ट योर स्पीड. और ये कैसे दिखाएगा, इसमें मैंने सिंपल यूनिटरी सिस्टम यूज किया है. दैट अगर आप 80 मिनट में 80 मिनट्स में आप 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप एग्जाम में अगर इसी स्पीड से चलें तो आप एग्जाम जो हमारा एक्चुअल एग्जाम जो होगा वो 60 मिनट्स का होगा. तो आप 60 मिनट्स में इसी स्पीड से कितने क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट, अगर आप 80 मिनट्स में 20 कर रहे हैं तो 60 मिनट्स में आप 15 कर पाएंगे. दैट इज सिंपल यूनिटरी मेथड. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ये आपको आपकी स्पीड दिखाएगा इन द एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो कि आप अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो आप एक्चुअल एग्जाम में इस स्पीड से कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे. अब ये जो डेविएशन है, डेविएशन आपको क्या दिखाएगा, डेविएशन आपको आपका बैकलॉग दिखाता रहेगा कि आप अपने टारगेट से कितना आगे या कितना पीछे हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आज आपने 20 क्वेश्चंस किए, आपको करने कितने थे 16, तो ये आपको +4 दिखा रहा है कि आपने अपने टारगेट से 4 क्वेश्चन ज्यादा किए. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 ही डाल देता तो ये मुझे दिखाता -6 बाय द एंड ऑफ द डे 1. बाय द एंड ऑफ द डे 1 ये परसेंटेज गलत आ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने करेक्ट कर दिया 10 जबकि मैंने अटेम्प्ट किए थे 10, तो इधर मैं करेक्ट को कर देता हूँ मान लो 6, तो ये अपना परसेंटेज भी सही हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल आपको करने थे 16, आपने किए हैं 10, तो ये आपको -6 दिखा देगा बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे 1 आपके 16 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व हो जाने चाहिए थे बट आपने किए कितने हैं, आपने 10 ही किए हैं, तो ये -6 दिखा देगा. फॉर एग्जाम्पल आप अगले दिन कितने कर लेते हैं, अगले दिन आप कर लेते हैं 13 कर लेते हैं और मान लीजिए 16 ही कर लेते हैं. ऑलराइट, अभी भी ये -6 दिखा रहा है क्योंकि बाय द एंड ऑफ द सेकंड डे आपके 32 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए थे बट आपने किए कितने हैं 26, तो आपके अभी भी -6 का बैकलॉग है. सो ये आपको अपनी बैकलॉग दिखाता रहेगा एंड इट विल शो यू कि आप अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं या आप बहुत पीछे चल रहे हैं या आप आगे चल रहे हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेविएशन भी, जो आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाता रहेगा. यही चीज आपको फॉलो करनी है डे 30 तक. स्टार्टिंग फ्रॉम डे 31 आपको सेम चीज फॉलो करनी है. आपको डेली 16 क्वेश्चंस करने हैं. बस मैंने सेकंड मंथ में क्या ऐड कर दिए हैं, सेक्शनल टेस्ट. नाउ ऑन एवरी 7th डे यू विल हैव टू टेक अ सेक्शनल टेस्ट एंड एनालाइज इट प्रॉपर्ली. और मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको उसका अपडेट भी मिल जाए. सो ऑन एवरी 7th डे आई हैव एडेड अ सेक्शनल मॉक टेस्ट. इन द थर्ड मंथ आई हैव मेड 2 चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करने तो 16 क्वेश्चंस ही हैं लेकिन अब आपको कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टार्ट करने हैं.
आपको वो 16 क्वेश्चंस या 4 सेट जो भी होंगे वो आपको कैट के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाने, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटेस्ट पेपर दैट इज कैट 2019। वहां से आपको स्टार्ट करने हैं और वही 16 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। दिस इज टू टेक योर प्रिपरेशन टू द टॉप लेवल, ताकि आपको एक्चुअल पेपर्स का आइडिया लग जाए कि एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैट में। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव एडेड टू टेक योर प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल पे ले जाने के लिए, जो मैंने एक और चीज ऐड करी है उसमें ये है, वी हैव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग मॉक टेस्ट। नाउ यू विल हैव टू टेक अ sectional test and analyze it properly on every 4th day in the last month. In the last month you will have to take sectional test on every 4th day। ये मैंने ऐड कर दिया है। Alright, so ये मैंने 90th day तक on every 7th day I have added a sectional mock test. So by the end of the 90th day you will end up solving 1210 questions which are good enough to build a strong foundation in DILR. Plus you will also be solving 11 sectional tests, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा और आप इसमें कैट पेपर्स भी सॉल्व कर चुके होंगे पूरे आपके। सो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही, आपका जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी यू विल स्टिल बी लेफ्ट विद 2 मंथ्स। अगर आप ये सितंबर तक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आपके पास कम से कम 2 महीने रहेंगे टू टेक फुल लेंथ टेस्ट एंड टू प्रैक्टिस अ लॉट मोर सेट्स। So that's all about the sheet, and trust me guys, if you will use this sheet regularly you will automatically start feeling confident about your preparation going in the right way. When you will see your percentage and exam efficiency increasing day by day, you will always have the zeal to improve further, and in case it decreases on some days, in case अगर आपकी percentage और exam efficiency कभी कभी कम भी होती है तो at least you will have these two parameters। ये parameters आपके पास रहेंगे तो सही at least to give you a reality check on every single day so that you can improve further in the upcoming days. So kindly use it for your own benefit. So I hope आपको एक्सेल शीट समझ आ गई होगी। उसमें मैंने जितने भी अपने टारगेट्स हैं वो सब डाल दिए हैं और जो भी पैरामीटर्स हैं विच विल बी गिविंग यू योर डेली प्रोग्रेस वो सब मैंने उसमें ऐड कर दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टडी मटेरियल, आपको वो सेट्स वगैरह जो भी हैं वो करने कहाँ से हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलआर के लिए टाइम मटेरियल इज द बेस्ट इन माय ओपिनियन। अगर आपके पास नहीं हो तो यू कैन गो फॉर निशित के सिन्हा और अरुण शर्मा's बुक। डीआई के लिए एनी कोचिंग मटेरियल एक्सेप्ट टाइम। डीआई के लिए आप टाइम को यूज मत कीजिएगा, उसमें बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी लेवल के सेट्स हैं। फिर भी अगर आपको टाइम मटेरियल ही सॉल्व करना है देन यू कैन डू इट, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर टाइम इन केस ऑफ डीआई। उसके लिए आप यूज कीजिए निशित के सिन्हा और अरुण शर्मा की बुक यूज कर लीजिए, या फिर और कोई सा भी कोचिंग मटेरियल यू कैन यूज एक्सेप्ट फॉर टाइम। ओमेट बेस्ड एलआरडीआई के लिए कोई सी भी कोचिंग मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, टाइम आईएमएस दोनों इसके लिए ठीक है। फोर्थ कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने ही है। लास्ट मंथ में मैंने आपको बता ही दिया आपको कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट वन जो कैट 2019 हुआ है उसमें से आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है और फिर रिवर्स ऑर्डर में चलना है। एंड फिफ्थ एग्जाम लेक्सिकन यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें मैं बहुत ही जल्दी एलआरडीआई की एक सीरीज अपडेट करने वाला हूँ, तो उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको समझाने वाला हूँ। नाउ लेट मी क्विकली समराइज एवरीथिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मॉक लेना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इससे आपको अपने करंट स्टेटस का आइडिया लग जाएगा। सेकेंडली आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाना है, मैंने आपको शेड्यूल दे ही दिया है, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग तो यू कैन डू इट, लेकिन उसको बना के एक बार फाइनल कर लो। देन आपको डेली 16 क्वेश्चंस दैट इज 4 सेट्स करने ही करने हैं सॉल्व। आपको एक्सेल शीट से आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना है। एंड लास्ट मैंने आपको बता ही दिया, प्लीज सब्सक्राइब द एग्जाम लेक्सिकन यूट्यूब चैनल एंड शेयर अ वर्ड अबाउट इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अपने दोस्तों को भी बता देना इसके बारे में। एंड एक चीज जो आपको नहीं करनी वो ये है कि डोंट टेक फुल लेंथ मॉक्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। जो फर्स्ट 90 डेज है उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट मत लेना, सेक्शनल्स ही लेना एक्सेप्ट फॉर प्रॉक्टर्ड वन। जो प्रॉक्टर्ड फुल टेस्ट होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक विंडो होता है जिसमें आप उसी विंडो में आप उस टेस्ट को दे सकते हो, वो फुल लेंथ टेस्ट तो आप ले लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनप्रॉक्टर्ड या टेक होम टेस्ट जिसे बोलते हैं वो आप अभी मत लेना, वो आप लास्ट 2 मंथ्स में सारे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये 90 डेज का प्लान सितंबर तक भी कंप्लीट कर लेते हो तो जितने भी आपके अनप्रॉक्टर्ड टेस्ट हैं वो आप अक्टूबर नवंबर में आराम से दे सकते हो। कमिंग ऑन टू द स्टडी मटेरियल, तो एक्सेल शीट का और जितनी भी बुक्स मैंने मेंशन करी है उन सबका आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And in case you are still stuck with any doubts regarding your DILR preparation, you can always contact me on my WhatsApp, Facebook और Instagram। इन सब के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम लेक्सिकन। इस वीडियो को बनाने में सीरियसली बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर यू।
तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जो कैट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड लास्टली मैंने इसमें लिंक आपको डाल दिए हैं VARC क्वांट्स और ओवरऑल स्ट्रेटजीज के, यू कैन चेक देम आउट एज वेल। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।